Welcome to the online learning platform of Sri Swaminarayan Institute of Technology, Bad Gandhinagar. Myself, Professor Gaurang Patel, your instructor for the course Microwave Engineering. Dear students, in the last video lecture, we have just gone through the introduction of microwave engineering, in which we have studied about history of microwaves. We have also discussed about what are the microwaves, what is the frequency range as well as wavelength range of microwaves. We have also discussed about the properties of microwaves, advantages and disadvantages of microwaves, and at the last we have discussed about some important application areas of microwave engineering. Now today we will start our chapter number 2, that is mathematical model of microwave transmission. So according to GTU syllabus, this is the second chapter, that is mathematical model of microwave transmission. So first of all, what is microwave transmission? ये microwave transmission क्या होता है? So microwave transmission means transmission of energy from one point to another point using transmission line. Microwave transmission means transmission of microwave energy or the energy at the microwave frequency from one point to another point, and for that we are using the transmission line. Now what is transmission line? So transmission line is a device which is designed to guide electric energy from one point to another point. For example, we would like to transfer the radio frequency energy of transmitter to antenna, suppose. Okay, so this energy will travel to the antenna from transmitter to antenna using the transmission line. So for example, let me give you the simple example कि सपोज मान लो कि आपके घर पे आप टीवी देख रहे हो, तो you are receiving the TV channels, right? You are receiving the TV channels. Okay, तो ये टीवी चैनल्स आप कैसे रिसीव कर रहे हो बच्चों? मतलब आपके घर पे एक एंटेना लगा है, सपोज मैं DTH का एग्जांपल, डायरेक्ट टू होम सर्विस. तो देयर आर लॉट्स ऑफ सर्विस प्रोवाइडर ऑफ द DTH सर्विस, डायरेक्ट टू होम सर्विस, इन विच आपके घर के ऊपर छत पे एक एंटेना लगा होता है, डिश जैसा, जिसको बोलते हैं पैराबोलिक रिफ्लेक्टर. एक ऐसा एंटेना होता है और एंटेना से सिग्नल रिसीव होके आपके घर पे एक सेटअप बॉक्स लगा होता है टीवी के साथ, और उस सेटअप बॉक्स तक आपका सिग्नल पहुंचता है. तो मतलब आप देख सकते हो कि एंटेना एंड मतलब ट्रांसमिटिंग एंटेना और रिसीविंग एंटेना वायरलेस कम्युनिकेशन है. बट फ्रॉम रिसीविंग एंटेना टू आपका जो सेटअप बॉक्स है वहां तक जो वायर यूज होता है उसको हम बोलते हैं ट्रांसमिशन लाइन. दैट इज द ट्रांसमिशन लाइन. सो ट्रांसमिशन लाइन is nothing but it transfer the energy of the transmitter to the antenna at the transmitter side or at the receiver side. Whatever the receiver energy by antenna, that is given to the receiver by use of the transmission line. तो बच्चों अगर हम कम्युनिकेशन लिंक की बात करें तो ट्रांसमिशन लाइन कहां पे पिक्चर में आएगी? फ्रॉम बिटवीन ट्रांसमीटर टू ट्रांसमिटिंग एंटेना एंड रिसीवर, बिटवीन रिसीवर एंड रिसीविंग एंटेना एंड रिसीवर. समझ में आ गया? तो आप देख ये येलो कलर की जो लाइन है वो सब ट्रांसमिशन लाइन है, और यहाँ पे फ्री स्पेस है जो वायरलेस कम्युनिकेशन मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट होता है. ओके, समझ में आ गया? ओके, अब आपको एक दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि इट इज कंपल्सरी टू हैव अ ट्रांसमिशन लाइन बिटवीन द एंटेना एंड ट्रांसमीटर एज वेल एज रिसीविंग एंटेना एंड रिसीवर. मतलब हम एंटेना को डायरेक्टली ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट नहीं कर सकते. वी कैन कनेक्ट, हम डायरेक्टली एंटेना को ट्रांसमीटर के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, बट मोस्ट ऑफ द टाइम जो ट्रांसमीटर एंड रिसीवर जो होता है वो मतलब रूम के अंदर रहता है, और जो एंटेनास लगे होते हैं वो छत पे होते हैं. कहां पे होते हैं? छत पे. तो इसीलिए छत से लेके आपके घर में जहां पे भी, घर पे या कोई जगह पे, कोई ऑफिस या कोई भी जगह पे, मतलब कॉमर्शियल जगह पे रूम में
ट्रांसमीटर और रिसीवर रखा है, तो वहां तक जो एनर्जी कैरी करने के लिए जो लाइन यूज होती है वो ट्रांसमिशन लाइन है, वो कंपल्सरी है। फॉर एग्जाम्पल, ऑन बोर्ड शिप द ट्रांसमीटर इज लोकेटेड इनसाइड द रेडियो रूम। ओके, ट्रांसमीटर रेडियो रूम के अंदर है, एंड इट्स एसोसिएटेड एंटेना, उसका जो एंटेना है ट्रांसमिटिंग एंटेना, दैट इज माउंटेड ऑन द मास्ट। सो ट्रांसमिशन लाइन इज यूज्ड टू कनेक्ट द ट्रांसमीटर टू एंटेना एट द ट्रांसमीटर साइड एज वेल एज रिसीविंग एंटेना टू रिसीवर एट द रिसीवर साइड। ओके, समझ में आ गया कि ट्रांसमिशन लाइन कहां पे पिक्चर में आती है। ओके, गुड। नाउ अगर मैं ट्रांसमीटर की बात करूं, सॉरी ट्रांसमिशन लाइन की बात करें, तो ट्रांसमिशन लाइन में दो एंड होते हैं। ये आप देख सकते हो कि ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है। ये कौन सी है? 2 वायर। दिस इज द 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। ओके, दिस इज द 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन। ओके, ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है। ट्रांसमिशन लाइन के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं दैट वी विल डिस्कस, बट ये 2 वायर ट्रांसमिशन लाइन है। ओके, सो ऑल द ट्रांसमिशन लाइन्स हैव 2 एंड्स। यहाँ पे देख सकते हो ये इनपुट एंड है और यहाँ पे आउटपुट एंड होगा। ओके, और इनपुट एंड को हम जनरेटर एंड भी बोलते हैं, जनरेटर एंड भी बोलते हैं। ओके, एंड सम डिफरेंट नेम्स आर ऑफ दिस ट्रांसमीटर एंड आर सेंडिंग एंड एंड सोर्स। ओके, और दूसरा जो ट्रांसमिशन लाइन का एंड है उसको हम बोलते हैं आउटपुट एंड और रिसीविंग एंड। ओके, और उसका दूसरा नाम है लोड एंड। सो ये एंड को आउटपुट एंड भी बोलते हैं, रिसीविंग एंड भी बोलते हैं और लोड एंड भी बोलते हैं। समझ में आ गया? ओके, नाउ हमने देखा कि जो ट्रांसमिटिंग मतलब जो इनपुट एंड होता है एज वेल एज आउटपुट एंड होता है, तो इनपुट एंड पे जो वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस। मतलब यहाँ पे जो वोल्टेज एंड करंट का जो रेशियो आपको मिलता है दैट इज वी इन डिवाइडेड बाय आई इन। व्हाट इज वी इन? इनपुट वोल्टेज, एंड व्हाट इज आई इन? दैट इज द इनपुट करंट। और ये दोनों का जो रेशियो होता है उसको हम बोलते हैं इनपुट इम्पीडेंस, एंड विच इज डिनोटेड बाय जेड इन। इनपुट इम्पीडेंस को किससे डिनोट करते हैं? जेड इन। ओके, एंड दिस इम्पीडेंस presented to the transmitter by this transmission line and its load and antenna। तो ये जो इम्पीडेंट यहाँ पे देख रहा है आपको जेड इन, दैट इज प्रेजेंटेड टू द ट्रांसमीटर बाय दिस ट्रांसमिशन लाइन एंड इट्स लोड एंड एंटेना। समझ में आ गया? सिमिलरली द रेशियो ऑफ वोल्टेज टू द करंट एट द आउटपुट एंड इज नोन एज अ आउटपुट इम्पीडेंस। मतलब यहाँ पे आउटपुट एंड पे हम जो आउटपुट वोल्टेज होता है दैट इज वी आउट, एंड जो करंट होता है दैट इज आई आउट, और इसका जो रेशियो होता है इसको हम बोलते हैं आउटपुट इम्पीडेंस, एंड विच इज डिनोटेड एज जेड आउट। ओके, जेड आउट। समझ में आ गया? एंड दिस इज द इम्पीडेंस प्रेजेंटेड टू द लोड बाय ट्रांसमिशन लाइन एंड इट्स सोर्स, बाय ट्रांसमिशन लाइन एंड इट्स सोर्स। ओके, सो दिस इज द impedance presented to the load by this transmission line and its source. Similarly, input impedance is the impedance presented to this transmitter by transmission line and load. Okay, समझ में आ गया? इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस का कंसेप्ट समझ में आ गया? ओके, अब हम एक इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन लाइन की एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक की बात करें जिसका नाम है कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। अब ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या है? इनपुट इम्पीडेंस तो पता चल गया, आउटपुट इम्पीडेंस भी पता चल गया, अब ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या है? तो सपोज मेरी ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइटली लॉन्ग है। ओके, सो इफ इनफाइनाइटली लॉन्ग ट्रांसमिशन लाइन कुड बी यूज, द रेशियो ऑफ वोल्टेज करंट एट एनी पॉइंट थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन, एट एनी पॉइंट ऑन द ट्रांसमिशन लाइन वुड बी द पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ द इम्पीडेंस। ओके, एंड दिस इम्पीडेंस इज नॉन एज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। मतलब अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन बहुत ही लंबी है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ओके, और कोई भी पॉइंट पे थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन आप कोई भी पॉइंट पे वोल्टेज एंड करंट का रेशियो लेंगे तो वो रेशियो आपको क्या मिलेगा? वो दैट इज नोन एज अ इम्पीडेंस, एंड विच दैट इम्पीडेंस इज नोन एज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ओके, तो कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, इनपुट इम्पीडेंस एंड आउटपुट इम्पीडेंस पता चल गया। व्हाट इज कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस? मतलब अगर आपकी ट्रांसमिशन लाइन इनफाइनाइटली लॉन्ग है, बहुत ही लंबी है, और कोई भी पॉइंट पे थ्रू आउट द ट्रांसमिशन लाइन कोई भी पॉइंट पे आप वोल्टेज एंड करंट का रेशियो लेंगे
तो वो जो इम्पीडेंस मिलेगा वो इम्पीडेंस होगा आपका कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, और कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस को हम डिनोट करते हैं Z0 से। किससे? Z0। ओके, समझ में आ गया? वी विल डिस्कस अबाउट दिस कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस इन ट्रांसमिशन लाइन, दैट वी विल डिस्कस इन अवर अपकमिंग लेक्चर्स। ओके, नाउ 4 टर्मिनल मॉडल ऑफ ट्रांसमिशन लाइन। तो हमारी जो ट्रांसमिशन लाइन है उसको अगर मुझे मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, अगर ट्रांसमिशन लाइन का मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, मुझे मैथमेटिकल एनालिसिस करना है, मैथमेटिकल एनालिसिस करना है ये ट्रांसमिशन लाइन का, तो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन, ये जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन लाइन हमने जो डिस्कस की है, ये ट्रांसमिशन लाइन है, ओके, दैट कैन बी मॉडल एज 2 पोर्ट नेटवर्क, दैट कैन बी मॉडल एज 2 पोर्ट नेटवर्क। कैसे बोलो, आप देख सकते हैं ये ट्रांसमिशन लाइन है, उसके 2 पोर्ट है, ये इनपुट पोर्ट है, पोर्ट ए, और ये आउटपुट पोर्ट है, और इनपुट पोर्ट पे क्या लगता है, दैट इज सोर्स, माइक्रोवेव एनर्जी मतलब एनर्जी सोर्स लगता है, और पोर्ट बी पे क्या लगता है, लोड, क्या लगेगा, लोड। ओके, तो आप देख सकते हो। और 2 पोर्ट नेटवर्क क्या होता है वो आप अच्छी तरह से आपके नेटवर्क थियरी में आपने पढ़ा होगा, ओके, कि ये 2 पोर्ट नेटवर्क क्या है, समझ में आ गया। आप देख सकते हो कि ट्रांसमिशन लाइन को किससे कैरेक्टराइज किया है, दैट इज कैरेक्टराइज बाय द Z0, व्हिच इज Z0, दैट इज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। ओके, एंड इन द मोस्ट ऑफ द केस फॉर एनालिसिस पर्पस द नेटवर्क इज एज्यूम टू बी लीनियर। ओके, वो कैसे एज्यूम करते हैं नेटवर्क को, ये जो नेटवर्क हमने कंसीडर किया है दैट इज एज्यूम, 2 पोर्ट नेटवर्क कंसीडर किया, दैट इज एज्यूम टू बी लीनियर, मतलब कि जो कॉम्प्लेक्स वोल्टेज होता है अक्रॉस आइदर पोर्ट, ये दोनों पोर्ट पे जो कॉम्प्लेक्स वोल्टेज मिलेगा दैट इज प्रोपोर्शनल टू द कॉम्प्लेक्स करंट फ्लोइंग इनटू द पोर्ट व्हेन देयर आर नो रिफ्लेक्शन। व्हाट इज रिफ्लेक्शन एंड दैट वी विल डिस्कस इन आवर सब्सिक्वेंट लेक्चर्स। एंड 2 पोर्ट्स आर एज्यूम टू बी इंटरचेंजेबल, मतलब आप कोई भी पोर्ट को इनपुट पोर्ट कंसीडर कर सकते हो, कोई भी पोर्ट को आउटपुट कंसीडर कर सकते हो। तो इतना याद रखो, ट्रांसमिशन लाइन में कोई भी पोर्ट को आप इनपुट पोर्ट कंसीडर कर सकते हो, कोई भी पोर्ट को आउटपुट कंसीडर कर सकते हो एट एनी टाइम, मतलब इट कैन बी इंटरचेंजेबल। ओके, एंड इफ द ट्रांसमिशन लाइन इज यूनिफॉर्म अलोंग इट्स लेंथ, मतलब ये यूनिफॉर्म है, देन इट्स बिहेवियर इज लार्जली डिस्क्राइब्ड बाय सिंगल पैरामीटर दैट इज नोन एज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस Z0। और ये कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस क्या होता है वो हमने प्रीवियस स्लाइड में डिस्कस कर लिया। ओके, समझ में आ गया, मतलब ये यूनिफॉर्म है ट्रांसमिशन लाइन अलोंग इट्स लेंथ, देन इट्स बिहेवियर, इसका जो ओवरऑल बिहेवियर है, उसका ओवरऑल बिहेवियर है उसको हम सिंगल पैरामीटर से डिस्क्राइब कर सकते हैं, विच इज नोन एज अ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस। सो यू कैन सी कैरेक्टरिस्टिक, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक इम्पीडेंस, एंटायर ट्रांसमिशन लाइन, entire transmission behavior of the entire transmission line is characterized or described by single parameter which is known as a characteristic impedance. So characteristic impedance is a very important parameter with respect to the transmission line. Now types of transmission line. So there are number of transmission lines that are used for transmission of the electrical energy from one point to another point. So one is the balanced 2-wire transmission line. दिस इज द बैलेंस 2-वायर ट्रांसमिशन लाइन जो हमने यहाँ पे डिस्कस की, देख सकते हो आप 2-वायर ट्रांसमिशन लाइन है। सो दिस इज द बैलेंस 2-वायर ट्रांसमिशन लाइन। और 2-वायर ट्रांसमिशन लाइन का बेस्ट एग्जांपल सपोज मैं लूँ तो अगर आप पुराने टीवी की सेट की बात करें, पुराने टीवी सेट जिसमें जो हम 2 ही चैनल आते, दूरदर्शन आता था, तो वो दूरदर्शन में क्या होता था कि जो टीवी है और ऊपर जो एंटेना होता है वो यागी उडा एंटेना रहता है। आपके घर की छत पे जो यागी उडा ऐसे स्ट्रिप, मतलब ऐसे यागी उडा एंटेना था, और यागी उडा एंटेना और आपका जो टीवी सेट है दोनों के बीच में एक बैलेंस्ड, मतलब एक 2-वायर ट्रांसमिशन लाइन यूज होती थी, अगर आपको याद है तो, जिसमें पैरेलल 2 वायर रहते थे, पैरेलल 2 वायर रहते थे। नाउडेज एज अ ट्रांसमिशन लाइन द कोएक्सियल केबल इज ऑल्सो यूज। सपोज मतलब आपके घर पे जो DTH है, अभी DTH मतलब जो ऊपर एंटेना लगा होता है, वहां से आपका जो सेटअप बॉक्स है उसके बीच में जो केबल होता है वो कोएक्सियल केबल है। ओके, एट माइक्रोवेव हाई फ्रीक्वेंसी द एज अ ट्रांसमिशन लाइन वी आर यूजिंग द वेव गाइड, मतलब अगर हाई फ्रीक्वेंसी माइक्रोवेव पे अगर आपको एनर्जी ट्रांसमिट करनी है वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट तो वेव गाइड का यूज करते हैं। वी कैन ऑल्सो यूज द माइक्रोस्ट्रिप्स एंड फाइबर ऑप्टिक्स। सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ
transmission line. But for our course we are only concerned about this balance मतलब 2-wire transmission line. Initially we discuss about the 2-wire transmission line. Then for transmission of the microwave energy we will focus on the waveguides. Okay, समझ में आ गया? Good. Now next is the concept of mode. ये mode क्या होता है? So in microwave engineering the energy is transmitted in form of the mode. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है दैट इज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ द डिफरेंट मोड्स, अलग अलग मोड में वो ट्रांसमिट होती है. तो ये मोड क्या होता है? सो द मोड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्क्राइब द फील्ड पैटर्न ऑफ द प्रोपोगेटिंग वेव. मतलब कोई भी वेव प्रोपोगेट हो रहा है, कोई भी वेव ट्रांसमिशन लाइन या वेव गाइड से प्रोपोगेट हो रहा है, ओके, तो उसमें जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है उसकी जो फील्ड पैटर्न होती है उसको हम बोलते हैं मोड. उसको क्या बोलते हैं? मोड. सो मोड ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिस्क्राइब द फील्ड पैटर्न ऑफ द प्रोपोगेटिंग वेव. ओके, फील्ड पैटर्न मतलब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है तो उसमें कितनी फील्ड होती है? 2 फील्ड होती है. कौन कौन सी? इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड. सो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन. तो कोई भी मोड में डिपेंडिंग ऑन दी डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड वी हैव द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड. ओके, समझ में आ रहा है? सो व्हाट इज मोड? मोड इज नथिंग बट इट इज अ फील्ड पैटर्न ऑफ प्रोपोगेटिंग वेव. सिंपल मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन क्या है, इसके हिसाब से मोड बनते हैं. एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट सेवरल टाइप्स ऑफ मोड इन द सब्सिक्वेंट टॉपिक. ओके, सो आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये जो रेड कलर की जो लाइंस है वो ये वेरिएशन है, ऑसिलेशन है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करे. और ये जो ब्लू कलर का जो ऑसिलेशन है और वेरिएशन है वो मैग्नेटिक फील्ड है. और ये जो है एरो जो दिखा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है. तो आप देख सकते हो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं. तो ये आपको मतलब डिस्ट्रीब्यूशन बताया, देख सकते हो आप फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन. तो इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट, मैग्नेटिक फील्ड का एक्स कंपोनेंट एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में EY एंड HY एंड EZ एंड SZ. सो व्हाट दिस EX रिप्रेजेंट? इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट इन एक्स डायरेक्शन, EY मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन इन वाई डायरेक्शन, HY मतलब मैग्नेटिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड EZ मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इन Z डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड इन Z डायरेक्शन. तो मोड के बारे में पता चल गया. मोड क्या है? तो माइक्रोवेव कम्युनिकेशन में जो भी एनर्जी ट्रांसमिट हो रही है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, दैट इज ऑलवेज ट्रांसमिटेड इन फॉर्म ऑफ द मोड फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट. मतलब जो ट्रांसमिशन लाइन है 2 वायर एंड जो वेव गाइड है उसमें जो एनर्जी एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट पे जाती है वो किसके फॉर्म में जाती है? मोड के फॉर्म में. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोड दैट कैरीज द एनर्जी. ओके, और ये मोड क्या है? दैट इज नथिंग बट इट इज अ फील्ड पैटर्न. इट इज अ फील्ड पैटर्न मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड की पैटर्न कैसी होती है वो वेव में, उसको बोलते हैं मोड. ओके, समझ में आ गया? एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स आर एनालॉगीज टू द नॉर्मल मोड ऑफ वाइब्रेशन इन अदर सिस्टम लाइक मैकेनिकल सिस्टम. जो मैकेनिकल सिस्टम में जो मोड्स ऑफ वाइब्रेशन होता है इसके इक्विवेलेंट आप उसको एनालॉगी उसको कंपेयर कर सकते हो. नाउ different types of mode, electromagnetic modes. So there are mainly 2 types of electromagnetic modes. First is the free space mode. Free space mode क्या होता है? मतलब जो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी फ्री स्पेस में ट्रांसमिट होती है तो उसमें जो फील्ड पैटर्न होती है उसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस मोड. सो द वेव इन विच इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर ऑर्थोगोनल टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव, ओके, उसको हम बोलते हैं फ्री स्पेस मोड. तो फ्री स्पेस मोड में क्या होता है? फील्ड पैटर्न कैसी होती है? तो फ्री स्पेस मोड में जो वेव होता है उसको उसका मोड फ्री स्पेस मोड है. कब बोल सकते हैं? जब उसमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड है दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, एंड दे आर ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ ट्रैवल ऑफ द वेव, देन उसको हम बोलेंगे फ्री स्पेस मोड. एंड दिस वेव्स आर ओनली एग्जिट इन द फ्री स्पेस फार फ्रॉम द एनी एंटेना. सो दिस आर द वेव्स दैट एग्जिस्ट इन फ्री स्पेस फार फ्रॉम एनी एंटेना. ओके, समझ में आ गया? तो अगर ये जो आप देख सकते हो कि इसमें देख सकते हो कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड
एंड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर मतलब ऑर्थोगोनल है, तो ये फ्री स्पेस मोड है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो होता है उसमें फ्री स्पेस मोड ये है। समझ में आ गया? ओके, तो व्हाट इज फ्री स्पेस मोड? जिसमें जो वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे के ऑर्थोगोनल होती है एंड दे आर ऑल्सो ऑर्थोगोनल टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, उसको हम बोलेंगे फ्री स्पेस मोड। मतलब तीनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर जिसमें होते हैं वो फ्री स्पेस मोड्स है। नाउ इफ वी अनदर कैटेगरी ऑफ द मोड दैट इज द मोड्स इन वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन, तो ये तो फ्री स्पेस मोड था। ओके, और अब वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन में जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक माइक्रोवेव एनर्जी प्रोपोगेट होती है तो कौन कौन से मोड एग्जिस्ट करते हैं? तो जब भी एनर्जी माइक्रोवेव एनर्जी वेवगाइड एंड ट्रांसमिशन लाइन में ट्रांसमिट करती है तो उसमें दो मोड्स पॉसिबल है। वन इज द ट्रांसवर्स मोड एंड अनदर इज द हाइब्रिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स। वन इज द ट्रांसवर्स मोड, अनदर इज द हाइब्रिड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोड्स। अब ये ट्रांसवर्स मोड क्या होता है? सो ट्रांसवर्स मोड्स आर मोड्स दैट हैव एटलीस्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड एंटायरली इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन। इसका मतलब ये होता है बच्चों कि ट्रांसवर्स मोड हम इसको बोलेंगे, ट्रांसवर्स मोड हम इसको बोलेंगे, ट्रांसवर्स मोड हम इसको बोलेंगे जिसमें आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड एटलीस्ट वन, दोनों हो सकती है, एटलीस्ट वन, आइदर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड और बोथ आर एंटायरली इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के परपेंडिकुलर वेरिएशन को हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, एक्स इज डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। समझ में आ गया? तो ट्रांसफर मोड में क्या होगा कि ये एक्स अगर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है तो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एटलीस्ट वन, वो किससे डायरेक्शन से, और दोनों भी हो सकते हैं, दोनों कौन से, दोनों और एटलीस्ट वन ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होंगे। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में है और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन तो ये ट्रांसवर्स मोड है। अगर मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में और ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एक्स है तो भी ये ट्रांसवर्स है, और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में, मतलब ऐसे, तो भी ये ट्रांसवर्स मोड है। ओके, समझ में आ गया? तो ट्रांसवर्स मोड में एटलीस्ट वन इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वो एंटायरली डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में होगी। ट्रांसफर मतलब परपेंडिकुलर। हाइब्रिड मोड में क्या होता है? बोथ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव कंपोनेंट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन और लॉन्गिट्यूडिनल डायरेक्शन। ओके, मतलब हाइब्रिड मोड में इसका ऑपोज है। हाइब्रिड मोड में क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों के कंपोनेंट कौन सी डायरेक्शन में होगी? लॉन्गिट्यूडिनल, मतलब उसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन की डायरेक्शन में होंगे। समझ में आ गया? डन, पक्का? ओके, तो अब ट्रांसवर्स मोड्स एंड हाइब्रिड मोड्स के हम डिटेल में डिस्कशन करें और टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स मोड भी हम डिस्कस करेंगे। नाउ लेट्स लुक एट अबाउट द टाइप्स ऑफ ट्रांसवर्स मोड। तो ट्रांसफर मोड किसको बोलेंगे? हमने देखा कि एटलीस्ट वन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एंटायरली इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ट्रांसफर मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, तो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन है। ओके, तो ट्रांसफर मोड तीन टाइप के, फिर से ट्रांसवर्स मोड तीन टाइप के, ये क्लासिफिकेशन है ट्रांसवर्स मोड का। वन इज द टीई मोड, अनदर इज द टीएम मोड एंड थर्ड इज द टीईएम मोड। टी मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, टीएम मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक एंड टीएम मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। समझ में आया? टी मतलब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक, टीएम मतलब ट्रांसफर मैग्नेटिक एंड टीएम मतलब ट्रांसफर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। अब ये तीनों मोड के फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम डिस्कशन करते हैं वन बाय वन डिटेल में। तो अगर मैं ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक की बात करूं, मतलब टीएम की बात करूं, ये टीएम मोड की बात करें हम, so in this mode TEM transverse electric magnetic, transverse electric magnetic मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड, ओके, दोनों डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ट्रांसवर्स डायरेक्शन में है। मतलब अगर वेव जेड डायरेक्शन में प्रोपोगेट कर रहा है, कौन सी डायरेक्शन में? जेड, तो जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी जीरो होगी और मैग्नेटिक फील्ड भी जीरो होगी। ओके, तो मतलब Z इज इक्वल टू जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इज जीरो, magnetic field in the direction of propagation is zero, मतलब there are no component in the direction of propagation, उसको हम बोलेंगे transverse electric magnetic। So in this mode
both the electric and magnetic field are purely transverse to the direction of propagation and there are no component in the direction of propagation. मतलब यहाँ पे मैंने direction of propagation कौन सी कंसिडर की है, Z. मतलब Z डायरेक्शन में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन नहीं है, मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन नहीं है. ओके, एंड दिस इज नोन एज अ प्रिंसिपल मोड. ओके, and this mode of wave propagation can only exist only when there are two conductor system. जो ट्रांसमिशन लाइन होती है उसमें दो कंडक्टर होते हैं. दो कंडक्टर सिस्टम में ये मोड एग्जिस्ट करता है. मतलब दिस एग्जिस्ट इन द टू वायर ट्रांसमिशन लाइन. दिस मोड डज नॉट एग्जिस्ट इन वेव गाइड. वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज वेव गाइड सिंगल कंडक्टर ट्रांसमिशन लाइन है. तो ये TEM मोड याद रखना है, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. TEM mode only exists in the multi-conductor system or the two-wire transmission line and it does not exist in waveguide. Waveguide में exist नहीं करता है. Waveguide में ये mode exist नहीं करता है. Waveguide में exist नहीं करता है. Okay, समझ में आ गया? And this mode is the TEM is the dominant mode of propagation where the cross-sectional dimension of the transmission line are small compared to the wavelength of the signal. ये dominant mode क्या है? वो अभी सिर्फ मैं आपको नाम ही बता रहा हूँ. आप जस्ट अभी डिटेल में हम नहीं जाएंगे. डोमिनेंट मोड के बारे में हम हमारे सब्सिक्वेंट लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर्स में. अभी सिर्फ नाम आपको याद रखना है, डोमिनेंट मोड. ओके, समझ में आ गया? ओके, सो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक क्लियर है, डन. नाउ ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का एक डायग्राम है, आप देख सकते हो कि ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये मतलब ये जो एरो दिखा रहा है वो डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन है. और इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायरेक्शन में देख सकते हो, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन परपेंडिकुलर है, देख सकते हो आप, ये वर्टिकल डायरेक्शन में. और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन ये डायरेक्शन में देख सकते हो, ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है. मतलब यहाँ से जो करंट फ्लो रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होती है. तो ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है. ओके, तो ये दो कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है और कंडक्टर के आसपास मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है. नाउ नेक्स्ट इज द टी मोड. TEM मोड तो देख लिया, उसमें क्या था, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक दोनों ट्रांसवर्स डायरेक्शन में थे. ट्रांसवर्स डायरेक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ट्रांसवर्स. ओके, मतलब इन द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक दोनों जीरो थे. अब ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक की बात करें तो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इज इन ट्रांसवर्स डायरेक्शन. मतलब इलेक्ट्रिक इज प्योरली ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन एंड मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट. मतलब डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन जो Z डायरेक्शन में थी, तो Z डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, जीरो. मतलब Ez इज इक्वल टू जीरो. बट मैग्नेटिक फील्ड इज नॉट इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन. मैग्नेटिक फील्ड ट्रांसवर्स डायरेक्शन में नहीं है, वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में. तो उसको हम क्या बोलेंगे, एज Z डज नॉट जीरो. सो दिस इंडिकेट द ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड. ओके, एंड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड एग्जिस्ट इन द वेव गाइड. मैंने प्रीवियस स्लाइड में नोट किया था, आपको बोला था कि जो TEM मोड है वो कहां पे एग्जिस्ट करता है. TEM मोड एग्जिस्ट इन टू वायर ट्रांसमिशन लाइन वेयर इन वेव एंड TEM मोड डज नॉट एग्जिस्ट इन वेव गाइड. ये वेव गाइड में एग्जिस्ट नहीं करता है. और तो वेव गाइड में कौन से मोड एग्जिस्ट करते हैं, तो इन वेव गाइड ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक एंड ट्रांसफर मैग्नेटिक मोड एग्जिस्ट करते हैं. तो ये वेव गाइड क्या है, तो वेव गाइड इज नथिंग बट इट इज अ होलो ट्यूब, सिंगल कंडक्टर होलो ट्यूब. ओके, एंड ये होलो ट्यूब में जब एनर्जी ट्रांसमिट होती है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपोगेट करता है, तो उसमें आइदर इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के ट्रांसवर्स होती है. ओके, तो आप ये फिगर भी देख सकते हो. ये फिगर में ये ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक मोड की फिगर है. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड एक लूप बना है. ओके, ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है. तो आप देख सकते हो कि ब्लू कलर जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है और रेड कलर जो ऑरेंज कलर है वो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है. तो मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है एंड इसके परपेंडिकुलर ट्रांसवर्स डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है. ओके, समझ में आ गया, डन. नाउ नेक्स्ट इज द ट्रांसवर्स मैग्नेटिक. सो ट्रांसवर्स मैग्नेटिक मतलब मैग्नेटिक फील्ड इज इन द ट्रांसवर्स डायरेक्शन. So in this mode, the magnetic field is purely transverse to the direction of propagation. मतलब magnetic field component in the direction of propagation is zero. Okay, मतलब direction of propagation Z है, तो Sz is equal to zero. Okay, and electric field is in the direction of propagation, that is Ez does not zero. Direction of propagation में electric field variation है. तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये फिगर में ये इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन हाफ इलेक्ट्रिक मतलब ये
ब्लू कलर का इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है और ये मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन आप देख सकते हो, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, वेव प्रोपगेशन की डायरेक्शन में, ये वेव प्रोपगेशन डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएशन है। और मैग्नेटिक फील्ड वेरिएशन उसके परपेंडिकुलर लूप में, ये मैग्नेटिक फील्ड ऑलवेज लूप में होती है, लूप्स आर देयर। ओके, समझ में आ गया? डन। ओके, तो हमने ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक देखा, ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक देखा, ट्रांसवर्स मैग्नेटिक देखा। और इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट किए? ट्रांसवर्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड बोथ आर ट्रांसवर्स टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन, दैट इज TEM मोड, and TEM mode exists in the two-wire transmission line. Transverse electric and transverse magnetic mode exists in the waveguide, which is a single conductor line or single conductor transmission line. Okay, and next is the hybrid modes. Okay, HE modes, which is denoted by HE modes. So hybrid modes, HE mode. तो हमने देखा था इंट्रोडक्शन मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ मोड में, हाइब्रिड मोड मतलब it is a mode in which electric field as well as magnetic field have component in the longitudinal direction. Okay, मतलब दोनों direction of propagation में होते हैं. Okay, and this modes can be analyzed as the superposition of TE and TM modes. मतलब HE is the superposition, linear superposition of TE and TM mode. Very important. Okay, this consider as a linear superposition of TM modes. Okay, HE mode मतलब क्या? इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड हैव अ कंपोनेंट इन द लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन। लॉन्गिट्यूडनल मतलब ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन मतलब ये डायरेक्शन लॉन्गिट्यूडनल है। ओके, एंड दे कैन बी एनालाइज एज लीनियर सुपरपोजिशन ऑफ TE एंड TM मोड। ओके, समझ में आ गया? तो हाइब्रिड मोड भी दो टाइप के हैं, HE एंड EH, HE एंड EH, HE मोड एंड दूसरा है EH मोड। ये दोनों हाइब्रिड मोड्स हैं। ओके, तो HE मोड, ये दोनों हाइब्रिड मोड किससे मतलब कैसे मतलब एनालाइज कर सकते हैं हम? इट कैन बी एनालाइज एज सुपरपोजिशन ऑफ TE एंड TM मोड। मतलब HE मोड किसको बोलेंगे? जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट वो डोमिनेट करता हो कंपेयर टू ट्रांसवर्स मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जिसमें ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डोमिनेट्स है उसको हम क्या बोलेंगे? HE मोड्स। और EH मोड मतलब ट्रांसवर्स मैग्नेटिक डोमिनेट करता हो उसको हम बोलेंगे EH मोड, EH मोड। समझ में आ गया? HE मतलब जिसमें ट्रांसवर्स इलेक्ट्रिक कंपोनेंट डोमिनेट्स करता हो, EH मतलब जिसमें TM कंपोनेंट डोमिनेट करता। सो HE मोड इज वन इन विच द TE कंपोनेंट डोमिनेट्स एंड EH मोड इज वन इन विच TM कंपोनेंट्स डोमिनेट्स। समझ में आ गया? डन। फिर से HE mode is one in which TE component dominates, EH mode is one in which TM component dominates. Okay, and basically hybrid modes are exist in the open conductor transmission line. In HE modes are exist in open conductor transmission line. Okay, so dear students, आज के लेक्चर के लिए इतना ही। Let's stop here. I hope कि आज जो भी हमने ट्रांसमिशन लाइन के बारे में डिस्कस किया, मोड्स के बारे में डिस्कस किया, आपको समझ में आ गया होगा। लेट्स स्टॉप हियर। थैंक यू वेरी मच। वी विल डिस्कस अबाउट अदर एस्पेक्ट ऑफ दिस कोर्स in our next video lecture. Thank you very much.